Good evening and Jai Shri Hari. Welcome to today's live discourse on Gupta Navratri with Brahmachariji Parakom. My name is Vikram Shastri. I represent Vedic Sadhana Foundation. So if you are here for the first time by any chance, welcome. And in short, Vedic Sadhana Foundation is a non-profit. Our aim is to revive Vedic practices through technology. And if you have not checked out Tantra Sadhana app, please do so. And we would urge you to attend the session day after tomorrow, which is going to be the last session in the series. We are on day 8. And on day 10, we will also be presided by our CEO, Priyanka Anand, who will walk us through VSF mission and talk about Swamiji, and more importantly, talk to you guys about how we can take your support going forward. So welcome again, and for the many of you who are joining us from day one, we thank you for your patience. We thank you for your trust, and also supporting us in this series, this being the first one that we have launched after Tantra Sadhana app was unveiled by Sri Om Swami, the founder, the visionary, the inspiration behind all our activities. We will start with the session in just a minute. I see many people are joining, so just to give in a couple of minutes for them to join. As I was saying yesterday, we have, it's been quite a journey for us to build the app, understand the sadhanas from Swamiji firsthand as to how they are meant to be done, and translate them into something that one can use in the app itself. Today is Ma Dhumavati is in the secret shrine. So if you have not performed the Dhyan Slok, please, I urge you to go ahead and do the same after the session. And this talk is about the Mahavidya who will appear at 12 a.m. today, Ma Bhaglamukhi. So for Ma Dhumavati, we have a very special sadhana in the app, which is called the Kaga sadhana. Kaga, as you know, represents the crow. It's a very unique sadhana, which when we heard for the first time, we were, we were kind of enthused by how different the sadhana is. And then when we came to Ma Bhaglamukhi, it is even more unique. It's a sadhana called Aranya sadhana, and even the whole requirement of how the sadhana unveils and unfolds is very unique and distinct. So it is one of each sadhana is different and it has its own uniqueness. But this one, from the implementation technically in the app, is also very unique and different, where you will see yourself walking around in the forest while performing rituals from a third person point of view. It's very unique, very visual, very atmospheric, and we would love to hear your feedback when you actually perform this sadhana. It's something uh, which is simply fantastic from our point of view when we saw the outcome. Well, so that's the time I want to take of yours. Let me invite Brahmachariji, and we can start off today's session. Jai Shri Brahmachariji, welcome. Thank you so Over to much, you. Vikram. Jai Shri. So I hope I'm audible enough, I'm visible enough. अगर कोई भी प्रॉब्लम हो कल की तरह प्लीज मुझे बीच में रोक के ही आप बताइएगा. And there was a beautiful suggestion from a viewer in the comments. किसी ने यहाँ पर लिखा था कि अगर कल की तरह कनेक्टिविटी का इश्यू हो तो हम वीडियो को ऑफ कर सकते हैं बीच में, ताकि ऑडियो जो है वो अच्छे से सुनाई दे और कोई इंटरप्शन ना आए. तो डू लेट मी नो इफ देयर इज एनी एरर occurs. So I'll do that. So on that note, we'll start with the invocation. देवी माँ के आवाहन के साथ, भगवान की स्तुति के साथ उन्हें अपने अंतर मन में धारण करेंगे, और जो आज का सेशन है देवी माँ बगलामुखी का, उनके स्वरूप के बारे में गहराई से जानना शुरू करेंगे. सो हाथ जोड़कर, आंखें बंद कर देवी माँ को आवाहन करेंगे.
ओ ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। महामाया प्रयच्छति। महामाया प्रयच्छति। ओम श्री मात्रे नमः। सर्वप्रथम मैं अपने गुरु श्री ओम स्वामी तथा आप सभी के अंतर मन में विराजमान माँ आदि पराशक्ति को साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ, जिनकी दिव्य प्रेरणा से आज हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। नारायण नमोस्तुते। श्री गुरुभ्यो नमः। इदं गुरवे इदं नमः। पौराणिक काल की बात है जब एक बार मदनासुर नाम का एक असुर हुआ। मदन असुर। मद होता है ना, वो एक नशा होता है, जैसे अल्कोहल का नशा हो गया, ड्रग्स का नशा हो गया। उस नशे को संस्कृत में कहा गया मद। तो एक शब्द आपने कई बार कथा को पढ़ते वक्त सुना होगा, मदनातुर होना। मदनातुर होना यानी कि नशे में चूर हो जाना, इतना ज्यादा एडिक्टेड हो जाना कि आपको वास्तविकता का भान ना रहे, बोध ना रहे। तो पौराणिक काल में ऐसा ही एक असुर हुआ जिसका नाम था मदन, और पीछे असुर, यानी कि अगर दोनों को जोड़ दिया जाए शब्दों को तो शब्द बनता था, उसका नाम बनता था मदनासुर। मदनासुर ने त्रिलोक में इतना त्राहिमाम कर दिया था, लोगों को, प्रजा को, सब त्रस्त हो चुके थे उससे। और हुआ ये कि सभी देवता हर बार की भांति भागते हुए दौड़ते हुए त्रिदेव के पास गए और कहा कि देखिए, आप सब इन्हें वरदान दे देकर इतना एक्सपर्ट बना देते हैं, इतना ज्यादा बलशाली बना देते हैं, तीव्र बना देते हैं, बुद्धिशाली बना देते हैं कि हम चाहते हुए भी इनसे युद्ध नहीं कर सकते, चाहते हुए भी हम इनसे विजय प्राप्त नहीं कर सकते, इनके सामने हम जीत नहीं सकते। तो जैसे भंडासुर के वक्त हुआ था, त्रिदेव ने हाथ खड़े कर दिए कि बाबा, ये हमारे बस की बात नहीं है। आप अब सीधा माँ आदि पराशक्ति के पास जाइए, सुप्रीम कोर्ट के पास जाइए। अब वही सीधा जो है भंडासुर का फैसला कर सकती है। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी जब मद्दासुर का एक मद्दासुर के बारे में कंप्लेन्स लेकर, फरियाद लेकर त्रिदेव के पास जाया गया देवताओं के द्वारा, उस समय पर त्रिदेव ने हाथ खड़े करके बोल दिया कि ये हमारे बस की बात नहीं है। ब्रह्मांड में इतना बड़ा तूफान आया हुआ था उस समय पर कि सब लोग बहुत ही ज्यादा त्रस्त हो चुके थे, इतने ज्यादा परेशान हो चुके थे कि उन्हें, उनके पास कोई मार्ग नहीं था, कोई रास्ता नहीं था उससे बचने का। तब जाकर देवी माँ बगलामुखी का आवाहन किया गया। और ये जो महाविद्या है वो तब तक अपने निराकार स्वरूप में थी, वो अभी अपने साकार स्वरूप में प्रकट हुई नहीं थी। तो जैसे ही उनका आवाहन हुआ, वे प्रकट हुई। और जो आप देवी माँ के फोटो में एक एसोटेरिक मीनिंग के साथ देखते हैं कि बगलामुखी माँ ने एक असुर की जिह्वा को, उनकी जीभ को पकड़ा हुआ है, और उसी के साथ देवी माँ ने उस पद्धति के साथ उस असुर का वध किया। यहाँ पर देखिए, कथा तो बहुत सामान्य है और शायद रोचक भी लग सकती है कि अच्छा, एक समय ऐसा भी आया था जब त्रिदेव स्वयं कुछ नहीं कर पाए, तब देवी माँ को प्रकट होना पड़ा और वध करना पड़ा। किंतु यहाँ पर भी एक छिपा हुआ रहस्य है, एक गूढ़ाति गूढ़ राज की बात छिपी हुई है इस कथा के भीतर। मदनासुर, ये जो असुर था, ये कहीं ना कहीं, मैंने आपको कहा, नशे को डिपिक्ट करता था, मद को, कैफ को।
जब एक व्यक्ति के ऊपर, एक इंसान के ऊपर, एक मनुष्य के ऊपर अहंकार का नशा चढ़ जाए, वो इतना ज्यादा अहम में राचने लगे, विचरण करने लगे, सफलता का नशा उसके ऊपर लग जाए, तो फिर वो कभी भी किसी का भी अपमान करने से पहले 2 बार सोचता नहीं है। पैसों का नशा होता है, प्रसिद्धि का नशा होता है, पद का भी नशा होता है, डेजिग्नेशन का। मेरा ये पद है, मैं ये हूं इस कंपनी में, और उसी नशे के अंदर वो एक के बाद एक गलती करते जाते हैं। जब आप ये चीजों को पुनरावर्तित करते हैं, तब कहीं ना कहीं हमारे भीतर वो बदलासुर जो है वो जीवंत हो जाता है। कई बार हमने असंख्य किस्से ऐसे सुने हैं जहां पर जो अमीर अम, प्रजा होती है, जो अमीर लोग होते हैं, जो बहुत ही ज्यादा पैसों के बीच में रहते हैं, प्रसिद्धि उनको प्राप्त हुई होती है, उन परिवारों के बच्चे कई बार अत्यंत उद्धत होते हैं, उद्दंड होते हैं, क्रोधी स्वभाव के होते हैं, और किसी का भी अपमान करने से पहले वो 2 बार सोचते नहीं। खास करके उनके घर पर जो काम करने वाले सहकर्मचारी होते हैं, या फिर उनके घर पर जो हाउस वर्कर्स काम कर रहे हैं, हाउस हेल्प काम कर रहे हैं, मेड्स जो काम कर रहे हैं उनके वहां पर, उनके साथ इस तरीके का बर्ताव किया जाता है जो शायद हम किसी पशु के साथ भी ना करें। तो ये जो असुर है, ये जो बर्ताव है, ये उसी असुर को व्याख्यायित करता है। और सबसे पहला इम्पैक्ट जीवा पर आता है, जीभ के ऊपर, टंग के ऊपर। एक व्यक्ति की वाणी जो है वो अनियंत्रित हो जाती है। वो इतना वाणी विलास करने लगता है कि सुनने मात्र से ही मानो लगे कि कान में से कीड़े गिर पड़ेंगे। और देवी माँ का जो प्राकट्य है, वो प्राकट्य यही सूचित करता है कि सबसे पहले आकर जीभ को काटा जाता है, उस कटुता को काटा जाता है, उस कटु वाणी को काटा जाता है। इस वाणी से हम दूसरों को हर्ट करते हैं, दूसरों को दुखी करते हैं, पीड़ा देते हैं, उन्हें हीन भावना का अनुभव करवाते हैं। ये जो अनुभव कराने की बात है, ये कहने के लिए तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ, मैंने इस व्यक्ति को हर्ट किया, जाकर मैंने सॉरी बोल दिया। बट वो सॉरी, वो क्षमा, वो माफी तब तक नहीं मिलती जब तक आप तहे दिल से, पूर्ण हृदय के साथ, हृदय पूर्वक उस व्यक्ति के पास जाकर ये ना कहे कि हाँ, मुझसे गलती हुई है। जब तक आप खुद उस बात को अनुभव नहीं कर रहे हैं और मात्र कहने के लिए कह रहे हैं, कर्टसी के खातिर या फिर मैनरिज्म के खातिर, उसका कोई मतलब है नहीं। देर वॉज अ ब्यूटिफुल डिस्कोर्स बाय स्वामी जी जहां पर उन्होंने कहा था कि यदि आपने किसी को हर्ट किया है, तो प्रायश्चित कर्म ये नहीं है कि आप ईश्वर के पास जाकर कहो कि अरे मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे नहीं करना चाहिए था, मुझसे, मेरे मुख से निकल गया, मेरी वाणी से ये बात निकल गई। ईश्वर को उससे, उस बात से कोई लेना देना नहीं है। देवी माँ को अथवा भगवान को उस बात से कोई लेना देना नहीं है। यदि आपको वास्तव में प्रायश्चित करना है, तो आप उस व्यक्ति के पास जाकर नम्रतापूर्वक, विनम्रतापूर्वक क्षमा मांग लीजिए कि हाँ, मैं जानता हूं या जानती हूँ कि मुझसे गलती हुई है, एंड आई एम रियली रियली सॉरी फॉर दैट। ये सबसे बड़ा प्रायश्चित होता है, और इसी से आप कर्म से मुक्त होते हो, कर्म के चक्र से मुक्त होते हो। अन्यथा आप ये मानकर चल रहे हो कि मैंने किसी को दुख पहुंचाया और मैं बाहर दान कर्म कर दूंगा, दक्षिणा किसी को दे दूंगा, 5 लोगों को भोजन करा दूंगा, या फिर मंदिर में जाकर भंडारा करा दूंगा, गरीबों को कपड़े दे दूंगा, उससे कोई लाभ नहीं है। हाँ, उससे लाभ तब है जब जिस इंसान को आपने हर्ट किया है वो इंसान आज इस दुनिया में रहा नहीं।
उसका जो फिजिकल एग्जिस्टेंस है उस व्यक्ति का, वो इस दुनिया में यदि नहीं रहा, उसका देहांत हो चुका है, तभी ये जो अलग अलग प्रायश्चित कर्म है, जहां पर उपवास का महत्व दिया गया, दान का महत्व दिया गया, दक्षिणा का महत्व दिया गया, भोजन का महत्व दिया गया, भंडारे का महत्व दिया गया, यज्ञ का महत्व दिया गया, तपस्या का महत्व दिया गया। यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत्। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रायश्चित कर्म के लिए तीन चीजों का त्याग कभी नहीं करना चाहिए एक मनुष्य को। यज्ञ कार्य, तप अर्थात तपस्या, पेनेंस, और दान। यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत्। तो जब आप इन प्रकार के कार्यों को करते हैं, जहां पर कोई व्यक्ति इस भूलोक पर अपने फिजिकल फॉर्म में नहीं है, देहांत हो चुका है, तब जाकर इन कार्यों के माध्यम से हम उस गिल्ट से मुक्त हो सकते हैं, उस पीड़ा से मुक्त हो सकते हैं, उस कर्म के चक्र से मुक्त हो सकते हैं, जे जो चक्र हमने किसी को हर्ट करने से शुरू कर दिया था, नोइंगली और अननोइंगली। और दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस पूरी घटना का, कि उस गलती को रिपीट ना करना। यदि हमें पता है कि हमारी वाणी कटु है, यदि हमें पता है कि हम बहुत ज्यादा कड़वा बोलते हैं, यदि हमें पता है कि हम जाने अनजाने में दूसरों को हर्ट कर देते हैं, तो उसी क्षण से वो माइंडफुलनेस आपके भीतर आनी चाहिए कि मैं अपनी ओर से पूरा प्रयास करूंगा कि मैं किसी को हर्ट ना करूं। यही अपने आप में देवी माँ बगलामुखी का प्राकट्य है। बाकी जो सारी बातें हैं, आज जब ये लाइव में हम लोग एक प्रैक्टिकल कर रहे थे, टेस्टिंग कर रहे थे, उस टाइम पर मेरे पीए ने एक अद्भुत बात कही मेरे साथ जो कार्य करते हैं, कि आज बहुत सारे लोग जुड़ेंगे क्योंकि माँ बगलामुखी है ना, बहुत पॉपुलर हैं, और बहुत ही ज्यादा लोग अपने शत्रुओं से पीड़ित हैं, शत्रु हानि से पीड़ित हैं। तो आज तो भर भर के लोग जुड़ने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं ये अपने आप में एक स्वार्थपूर्ण साधना हो गई, अपने आप में एक ऐसी उपासना हो गई जो अ, आप किसी महेच्छा के साथ कर रहे हो। एक ट्रांजैक्शनल भक्ति, आदान प्रदान की भक्ति, कि माँ मैं तुम्हारी भक्ति इसलिए कर रहा हूं क्योंकि तुम मुझे ये दोगी बदले में, रिवॉर्ड के तौर पर, एक इनाम के तौर पर। तो इस तरीके की भक्ति कितनी काम आती है, वो कोई नहीं बता सकता। आज तक जो वास्तविक सिद्ध हुए हैं, स्वामी जी ने कितनी बार ये कहा है कि इस तरीके की भक्ति आज तक कभी किसी के काम में नहीं आएगी। मंत्रों का प्रभाव जरूर है, मंत्रों की ऊर्जा जरूर है, मंत्र का जो ध्वनि है उसका अपना एक अलग महत्व है, किंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि आप माँ को बांध कर अपने पास लेकर आओगे। आपने दो मंत्र जप लिए और आपने ये सोच लिया कि मैं अब तो देवी माँ को बांध कर अपने कार्य जो है वो उनसे कराऊंगा। इससे बड़ी भ्रमणा, इससे बड़ी मूर्खता और कोई हो नहीं सकती। अगर यदि आप ये सोच रहे हैं, अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं मंत्रों का जाप करते रहूंगा, अपने आप को निरंतर पवित्र नहीं करूंगा, अपने आप को निरंतर शुद्ध नहीं करूंगा, मेरे इंटेंशंस को शुद्ध नहीं करूंगा, मेरे वाणी व्यवहार बर्ताव को शुद्ध नहीं करूंगा, और मात्र मंत्र जप के माध्यम से देवी माँ की कृपा प्राप्त करता रहूंगा, अपने कार्य करवाते रहूंगा, ट्रस्ट मी, आप बहुत ही बड़े भ्रम में जी रहे हैं। इट्स अ बिग बिग इल्यूजन, बहुत ही बड़ी भ्रमणा। इससे अधिक ये कुछ नहीं है। प्लेसिबो इफेक्ट सुना है ना आपने? हो सकती है कि आपने दो पांच मंत्रों का जाप कर लिया, जीवन में अचानक कुछ अच्छा हो गया, आपने सोचा कि ये मेरे मंत्र जाप का प्रभाव है, लेकिन वो वास्तव में होती है प्लेसिबो इफेक्ट। जहां पर आप कुछ कार्य कर रहे हैं और उसी कार्य के दौरान कुछ ऐसी घटना हो गई आपके जीवन में जो आपके द्वारा इच्छित थी, आप उस घटना के इच्छुक थे कि ये घटना मेरे जीवन में हो, और वो अचानक से हो गई।
क्योंकि वो होनी थी उस समय पर, इसलिए हुई, ना कि आपके मंत्र जप के कारण। तो तब तक उस अनुभव को महत्व मत दीजिए जब तक आप उस अनुभव को बार बार ना करें। जब तक एक स्वप्न आपको बार बार ना आए, तब तक उस स्वप्न के ऊपर अपने विचार को खर्च करने की आवश्यकता नहीं है, अपने समय को, अपनी शक्ति को खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। यही बात लागू होती है संकेत के मामले में भी। तो माँ बगलामुखी जो है वो कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है आपके अंदर के शत्रुओं का नाश करने के लिए। वो प्रकट होती है आपके भीतर के रिपु को, रिपु अर्थात शत्रु, उसका वध करने के लिए। और सबसे पहले उस घटना की शुरुआत होती है आपकी वाणी को शुद्ध करने मात्र से, क्योंकि वो वाक सिद्धि प्रदान करती है। वाक सिद्धि के भी दो प्रकार हैं। एक, आपके मुख से जो निकल गया, जो विधान निकला, वही सत्य होगा। उसे मिथ्या करने की शक्ति ब्रह्मांड के किसी ऊर्जा के पास नहीं होगी। किंतु ये सत्य कब हो सकता है? जब आप स्वयं सत्यभाषी हो और आपका जो आचरण है वो सत्य आचरण हो, मिथ्या आचरण ना हो। माँ का एक नाम ही है श्रीलिता सहस्त्र नाम में, सत्य प्रिया। जिनको सत्य अत्यंत प्रिय है, जो सत्य भाषी हैं, जो निरंतर सत्य के साथ अडिग स्वरूप में जुड़ी हुई है, वही है देवी माँ। तो सबसे पहले जीवन में देवी माँ का प्राकट्य वाणी के माध्यम से होता है, माँ बगलामुखी का प्राकट्य। पहली बात सिद्धि ये कि जहां पर आपके मुख से यदि किसी के लिए कोई अच्छे वचन निकले, तो उस वचन का प्रभाव ये होगा कि उसे कोई मिथ्या नहीं कर पाएगा। उस वचन का प्रभाव ये होगा कि उस वचन के माध्यम से आपने जिनका भी अच्छा भला चाहा, वो घटना होकर रहेगी उनके जीवन में। दूसरा वाक सिद्धि का प्रकार ये है जहां पर लोग आपकी बात मंत्रमुग्ध होकर सुनते रहते हैं, और आपका एक प्रभाव जो है वो विश्व के बहुत बड़े तबक्के, बहुत बड़े वर्ग के ऊपर होता है। ये दोनों प्रकार से वाक सिद्धि जो है वो देवी माँ बगलामुखी प्रदान करती है। तत्पश्चात स्तंभन, ये सारे जो है वो षटकर्म है। मारण, मोहन, वशीकरण, स्तंभन, उच्चाटन, विद्वेषण, इसके ऊपर मैं जाना नहीं चाहता, क्योंकि इन्हीं चीजों की वजह से, इन्हीं भ्रमणाओं की वजह से लोगों ने तंत्र को एक अलग ही स्वरूप दे दिया। आज का इंटरनेट चल रहा है इन्हीं चीजों की वजह से। सो ऑलरेडी तंत्र को इतना ज्यादा डार्क लाइट में दिखा दिया गया है कि अगर और उसके ऊपर बात करेंगे तो कहीं ना कहीं एक तो इसमें वास्तविकता नहीं है किसी भी प्रकार की। क्या आप वास्तव में ये मानते हैं कि शाबर मंत्र का उच्चारण कर लिया और आपने 5-6 शाबर मंत्र सिद्ध कर लिए, कोई तांत्रिक साधना कर ली, कोई मांत्रिक वैदिक साधना कर लिया आपने, और आप भगवान को बांध कर जो मन चाहे वो कार्य कर सकते हैं, किसी का भी बुरा कर सकते हैं? तो फिर दैवीय शक्ति गई कहाँ, आपकी भक्ति गई कहाँ? यदि आपके ऊपर कोई इतनी आसानी से बुरा कर सकता, यदि आपके ऊपर इतनी सरलता से संबंध हो सकता, मारण हो सकता, मोहन हो सकता, वशीकरण हो सकता, तो पूरी दुनिया में 8 अरब लोग हैं, सबके ऊपर होता। बड़े बड़े लोग पड़े हुए हैं जिनके ऊपर हो सकता था ये। कारण बहुत सारे दिए जा सकते हैं कि होता है, नहीं होता है, कितनी तथ्यता है, कितनी सत्य बात है इसमें। किंतु वास्तविकता ये है कि इन सारी चीजों का वास्तविक उपयोग तब होता था जब इस समाज में इतनी ज्यादा सुविधाएं नहीं होती थी और लोग जंगलों में रहते थे, जहां पर उन्हें प्राणियों को, पशुओं को अपने घर तक आने से रोकना होता था, अपनी कुटिया तक आने से रोकना होता था। तब वे स्तंभन का प्रयोग किया करते थे ताकि उनके घर के आसपास जो एक बाउंड्री बनी हुई है, जो वृत्त बना हुआ है, जो गोलाकार बना हुआ है, उस वृत्त से, उस सर्कल से कोई भी प्राणी, खूंखार पशु अंदर ना आ सके। और जैसे ही वो उस बाउंड्री के ऊपर पैर रखते, वो पशु वहीं पे स्तंभित हो जाते, वहीं पे रुक जाते और वापस चले जाते। वो वहां से एंटर नहीं हो पाते थे। कई बार मारण किया जाता था, क्योंकि कई जो प्रजातियां हैं वो इतनी ज्यादा तीव्र होती हैं, इतनी ज्यादा भयावह होती हैं कि वो मारण से ही उनको रोका जा सकता था।
तो स्वरक्षा के लिए षटकर्मों का प्रयोग ज्यादातर होता था, ना कि किसी को हानि पहुंचाने के लिए। यदि आपकी भक्ति में वास्तविकता है, सच्चाई है, यदि आपको अपने ईश्वर में पूर्ण श्रद्धा है, यदि आपका समर्पण अपने ईश्वर के प्रति पूर्णतया है, तो चाहे कोई शाबर मंत्र का प्रयोग करे, चाहे कोई तांत्रिक मंत्र का प्रयोग करे, चाहे कोई वैदिक मंत्र का प्रयोग करे, आपके ऊपर किसी भी प्रकार से हानि पहुंचा पाना संभव नहीं है। इसे अपनी घर की दीवार पर गोल्डन लेटर्स में आप टाइप करके चिपका सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले देवी माँ बगलामुखी के साथ यही भ्रमणाएं जुड़ी हुई हैं। शत्रुओं का नाश कर देंगे, हमारे जीवन में सभी प्रकार की हानि टल जाएगी। और आज की तारीख में कलयुग में सबसे जागृत देवी हैं, क्योंकि हमारे जीवन में हमें इन चीजों की आवश्यकता है, सफलता की आवश्यकता है, तो हम इस देवी की उपासना करेंगे। आप पूर्ण भाव से यदि आपने ओम नमः शिवाय ये 5 अक्षर का नाम भी ले लिया ईश्वर का, तो भी वो नाम आपके जीवन में बहुत बड़ा साबित होगा। वो आपको सिद्ध बनाने के लिए सक्षम है, वो एक मंत्र छोटा सा। तो इसी कारण से देवी माँ को ब्रह्मास्त्र विद्या कहा गया, क्योंकि वाणी जो है वो ब्रह्मास्त्र का काम करती है, वो बहुत बड़ा अस्त्र है। आप वाणी से वो कार्य कर सकते हैं जो तलवार से नहीं किए जा सकते, जो एक खड्ग से नहीं किए जा सकते, जो एक चाकू से नहीं किए जा सकते। वाणी कहीं ना कहीं अपने आप में वो एक वेपन है, जिसके माध्यम से आप एक, आई डोंट वांट टू टेक दिस एग्जांपल बट दिस इज वेरी एप्ट, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ। वाणी आपको हिटलर भी बना सकती है, और वाणी आपको महात्मा गांधी भी बना सकती है, या फिर स्वामी विवेकानंद भी बना सकती हैं। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कौन सी दिशा में जाना चाहते हैं। वाणी आपको ओसामा बिन लादेन भी बना सकती है, और यही वाणी आपको कहीं ना कहीं एक दलाई लामा, जो महान संत है, बौद्धिक संत, वो भी बना सकती हैं। इट इज कम्प्लीटली अप टू यू कि आप अपनी वाणी का शस्त्र के तौर पर कैसे प्रयोग कर रहे हैं। इसी कारण से देवी माँ को ब्रह्मास्त्र विद्या कहा गया, क्योंकि वाणी जो है वो कहीं ना कहीं परब्रह्म का एक स्वरूप है। देखिए, यहाँ पर सीधा कनेक्शन वेदों के साथ जुड़ा हुआ है इस बात का। वेदों ने मंत्र को कहा, ध्वनि को कहा नाद ब्रह्म, शब्द ब्रह्म, और यहाँ पर हम कह रहे हैं वाणी को ब्रह्मास्त्र विद्या। यदि कोई भी शब्द, कोई भी मंत्र शब्द ब्रह्म है, नाद ब्रह्म है, कोई भी बीजाक्षर बीज मंत्र नाद ब्रह्म है, तो यदि हम इनका उच्चारण करते हैं अपने आप को शुद्ध करने के लिए, तो वो अपने आप ब्रह्मास्त्र बन ही जाएगा, द ग्रेटेस्ट वेपन ऑफ ऑल द टाइम। दिस इज वाई माँ बगलामुखी को ब्रह्मास्त्र विद्या के साथ जोड़ा गया। पीले रंग के साथ माँ का एक बहुत ही लगाव है। पीतांबर जो रंग है वो माँ का अत्यंत प्रिय रंग है। तो जहां जहां पर आप बगलामुखी माँ का स्वरूप देखेंगे, उनके मंदिरों को देखेंगे, इफ यू हैव बिन टू कामाख्या माँ, जो नीलाचल पर्वत पर निवास करती हैं, उनके वहां पर माँ बगलामुखी का बहुत सुंदर मंदिर बना हुआ है। सो इट इज फुल्ली कवर्ड विथ येलो कलर। वहां पर आप जैसे मंदिर के नजदीक पहुंचते हैं, आपको पीले रंग की चुनरी, पीले रंग के वस्त्र, पीले रंग की मिठाइयाँ, वो सारी चीजें वहीं से मिलनी शुरू हो जाती हैं। एंड देन इफ यू एंटर इन द टेम्पल, देन यू कैन सी द येलो कलर एवरीवेयर। सो पीला रंग जो है वो तेजस के साथ जुड़ा हुआ है, तेज, महातेज, सूर्य के साथ। आपकी वाणी आपको प्रकांड पंडित बना सकती है, प्रखर तेजस्वी बना सकती हैं, महानतम विद्वान बना सकती हैं। एक ऐसा विद्वान जिसकी ख्याति समस्त विश्व में सूर्य की भांति हो। वो तेज इतना प्रचंड हो कि आप पूरे विश्व तक अपने आप ही पहुंच जाए, आपको किसी के पास जाकर ये कहना ना पड़े कि मैंने ये किया है। सूर्य को कहना नहीं पड़ता कि मैं सूर्य हूँ, मैं सूरज हूँ, मेरी पूजा करो। लोगों को पता है कि सूरज की महत्ता क्या है, उसका महत्व क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है। दैट्स वाई
पीला रंग इज कनेक्टेड विथ देवी माँ बगलामुखी। वो आपको एक इस तरीके की विद्वत्ता प्रदान करती हैं जो मात्र एक सूर्य के भीतर हो सकती है। वो तेज प्रदान करती है, वो महाज्ञान प्रदान करती हैं जो मात्र आपको एक महानतम सिद्ध के पास से प्राप्त हो सकता है। यहाँ पर माँ साक्षात आपकी वाणी के ऊपर विराजमान होकर आपको वो सब कुछ प्रदान करती हैं जिसे आपकी जिसकी चाहत आपके मन में रही हो या फिर जिसका आपने संकल्प लिया हो। तो इसी एक घटना के साथ नाउ विल स्टार्ट विजुअलाइजिंग डिवाइन मदर। तो फिर से एक बार कंफर्टेबली बैठ जाइए और जितना हो सके उतना शांतिपूर्वक बैठने का प्रयास करिए। अपने आसपास यदि कोई भी आवाज हो रहे हैं तो उस पर ज्यादा ध्यान मत दीजिए। दोनों हाथों को अपने गोद में रखकर सिट कंफर्टेबली, सांसों के ऊपर ध्यान दीजिए। गहरी सांसें लीजिए। टेक अ डीप ब्रेथ। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। जहाँ पर आप बैठे हैं उसी स्थान पर अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान केंद्रित कीजिए बैठे बैठे। जो आपका तीसरा नेत्र है, द थर्ड आई, दोनों भ्रुकुटियों के बीच में, आईब्रोज के बीच में, जितना हो सके उतना शार्प कंसंट्रेशन के साथ अपने मन को उस भाग पर केंद्रित करने का प्रयास कीजिए। आपके आसपास निर्जन वन की अनुभूति हो रही है। एक ऐसा जंगल जो घनघोर वृक्षों से भरा पड़ा है। उस हरियाली के बीच में आप अपने पीले रंग के आसन के ऊपर बैठे हुए हैं। दसों दिशाओं से पंछी के स्वर, पशु एवं प्राणी की दहाड़ आपको सुनाई दे रही है। कोयल, चिड़िया, पोपट से लेकर विभिन्न पंछी जिनके स्वर आपके कानों में गूंज रहे हैं। साथी में कहीं दूर से शेर की दहाड़ने की आवाज सुनाई दे रही है। इसी के साथ गाय
बैल, स्वान, इन सभी के स्वर भी आपको सुनाई दे रहे हैं। प्रकृति के इस अनुपम सौंदर्य के बीच में आप अपनी साधना में मग्न हैं। ऊपर आकाश में सूर्योदय दीप्यमान है, प्रचंड तेज के साथ। मध्याह्न का सूर्य, दोपहर का सूर्य। किंतु रोचक बात यह है कि ये सूर्य का ताप, का तेज आपको परेशान नहीं कर रहा। ये जो धूप है वो आपके शरीर को जला नहीं रही। सौम्य भाव के साथ आप उस मन में अपनी साधना में मग्न है। धीरे 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 उन सभी पशु, प्राणी और पंछी के स्वर नजदीक आते जा रहे हैं। कुछ देर पहले तक जो स्वर बहुत दूर से आ रहे थे, अब उनकी तीव्रता, उनकी आवाज और भी ज्यादा तेज हो चुकी है। उनकी दहाड़े और भी ज्यादा पास से सुनाई दे रही हैं। उसी समय पर एक हाथी अपनी प्यारी सी सूंड को हिलाता हिलाता आपके समीप आ रहा है। आप देखते हैं कि वो हाथी का बहुत ही प्यारा सा बच्चा है। वो अपनी सूंड को ऐसे हिला रहा है मानो आपके साथ खेलना चाहता हो। आप अपने आप को रोक नहीं पा रहे और उस हाथी को गले लगकर अपने स्थान पर बैठे बैठे ही सहलाने लगते हैं। वो प्यारा सा गजराज आपके पास बैठकर जमीन पर सो गया। आप उसके मस्तक के ऊपर हाथ सहला रहे हैं। उतने में ही एक बहुत ही प्यारा सा श्वान, एक छोटा सा कुत्ता भागते हुए आपके पास आ चुका है। मानो उसके चेहरे के ऊपर एक बहुत ही सुंदर मुस्कान जो है वो व्याप्त है। जैसे वो आपसे आग्रह कर रहा है कि मुझे भी सहलाओ, मुझे भी खेलना है आपके साथ, मुझे भी प्रेम चाहिए। आपने उसके साथ भी खेलना शुरू कर दिया है और देखते ही देखते बहुत सारे पंछी आपके कंधों के ऊपर एवं आपके सामने जो जमीन है वहीं पर आकर बैठ गए। सभी को अत्यंत प्रेम से सहला रहे हैं।
विशेष बात यह है कि ये पंछी और पशु आपसे डर नहीं रहे। ये सभी आप में ओत-प्रोत हो चुके हैं, एकाकार हो चुके हैं। आपके प्रेम का अनुभव कर रहे हैं। उसी समय पर अचानक सामने से एक शेर आता है, लेकिन उसकी दहाड़ से भी एक भी पशु, एक भी पंछी भयभीत नहीं हुआ है। जैसे हाथी, गाय, बैल और श्वान अपने-अपने स्थान पर आकर बैठ गए थे, वैसे ही वो शेर भी आपके पास आकर ज़मीन पर लेट जाता है और आपको जैसे आग्रह कर रहा है कि मेरे साथ खेलो। किसी भी प्रकार की भयावहता या फिर डर का नामो-निशान उस वातावरण में नहीं है। आप निर्भय होकर सभी के साथ खेल रहे हैं और निरंतर आपके मुख से देवी माँ बगलामुखी के बीज मंत्र का उच्चारण हो रहा है। लिंग, 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 लिंग। और उस बीज मंत्र के ध्वनि के साथ सभी पशु, पंछी, प्राणी और भी ज़्यादा मित्र भाव में आकर आपके साथ खेल रहे हैं। मानो जैसे देवी माँ के भेजे हुए दूत ही हो। और इसी के साथ आपकी साधना जो है वो निरंतर चल रही है। देवी माँ अंत में आपके सामने उसी जंगल से चलती हुई समीप आ रही है। पीले रंग की साड़ी पहने हुए, किसी भी प्रकार के अलंकार के बिना, आभूषणों के बिना, पूर्ण मातृत्व भाव में देवी माँ आपकी ओर कदम बढ़ा रही है। उसी समय पर आपके मुख से मात्र एक ही स्तुति गान हो रहा है। न तातो न माता न बंधुर्न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता न जाया न विद्या न वृत्तिर्ममैव गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। हे माँ, मेरे जीवन में अब मुझे कोई संबंध नहीं चाहिए। ना माता ना पिता, ना पुत्र न पुत्री, ना भाई ना बहन। अब तो मेरी गति एवं मति केवल आप ही हैं। आपके चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम है माँ। जिस क्षण आपने प्रकृति के समस्त जीवों को अपना लिया, जिस क्षण सभी पशु, पंछी एवं प्राणी को आपने आहत करना बंद कर दिया, उनको चोट पहुंचाना बंद कर दिया, उसी समय से देवी माँ बगलामुखी
की प्रसन्नता आपको प्राप्त होनी शुरू हो चुकी थी। उनके साथ खेलना, उन जीवों को प्रेम देना, ये आपकी सबसे बड़ी साधना थी। माँ आपसे अत्यंत प्रसन्न है और आपके अंतर्मन में विराजमान होकर एक तेजोपुंज बनकर आपके भीतर समाहित हो चुकी हैं। प्रचंड तेज एवं वाक सिद्धि के साथ अब आप में वो सामर्थ्य है कि आप सभी जीवों की भाषा समझ रहे हैं। अब आप उस जंगल का एक भिन्न हिस्सा बन चुके हैं। उस वन से, उस जंगल से अब आप अलग नहीं हैं। प्रत्येक पेड़, पौधे, औषधि, वनस्पति, कीटक एवं पशु, प्राणी, पंछी के साथ आपका एक नाता जुड़ चुका है। देवी माँ की ये साधना यहाँ पर संपन्न होती है। अरण्य साधना के माध्यम से अब आप प्रकृति के प्रत्येक तत्व के साथ एक रूप हो चुके हैं। मकड़ियों के रेंगने की आवाज से लेकर शेर के दहाड़ने की आवाज तक सब कुछ अब अपने स्थान पर बैठे बैठे अनुभव कर पा रहे हैं। जैसे आप उनके भीतर विराजमान हो चुके हो, या फिर ये कहे कि वे आपके भीतर समाहित हो चुके हैं। समस्त सृष्टि को चलाने वाली, मद को काबू में लाने वाली देवी माँ, राजराजेश्वरी, बगलामुखी अब आपके भीतर हमेशा हमेशा के लिए समाहित हो चुकी है। पुनः अपने तीसरे नेत्र के ऊपर ध्यान केंद्रित कीजिए। उसी भाव में रहकर, उसी भक्ति के साथ देवी माँ के मूल स्वरूप का ध्यान कीजिए। पीले रंग से आच्छादित उस स्वरूप का ध्यान कीजिए जिसका तेज सूर्य के समान प्रचंड है। उस त्रिनेत्र पर अब एक सूर्य स्थापित हो चुका है जो आपके अंतर्मन को निरंतर प्रकाशित करता रहेगा। जीवन में आपके जो आंतरिक शत्रु हैं उनका वध करता रहे और वही तेज आपकी वाणी के ऊपर विराजमान होकर आपके माध्यम से देवी माँ का ही कार्य करने के लिए आपको प्रेरणा देगा। इनहेल, एक्सहेल, गहरी सांस लीजिए। धीरे धीरे आप अपनी आंखें खोल सकते हैं।
तो माँ 8वीं महाविद्या है। और 8 का ये जो आंकड़ा है, ये जो अंक है, उसके बारे में ललिता सहस्त्रनाम में कहा गया, अष्टमी चंद्र विभ्राज दलिका स्थल शोभिता। ये नंबर अपने आप में हमारे हिंदू शास्त्रों में, सनातन के ग्रंथों में अत्यंत शुभ भी माना जाता है, क्योंकि इसी दिन पर माँ दुर्गा का प्राकट्य हुआ। दुर्गाष्टमी हम इसी दिन पर मनाते हैं। और इसी दिन पर कहीं ना कहीं जो भगवान का भैरव स्वरूप है, उनका भी प्राकट्य हुआ। तो जो भैरवाष्टमी है वो भी इसी दिन पर मनाई जाती है। सबसे महत्वपूर्ण बात, इसी दिन पर भगवान कृष्ण का भी प्राकट्य हुआ, जिसे हम मनाते हैं जन्माष्टमी के तौर पर। और अशुभ कहीं ना कहीं इसलिए क्योंकि हम बहुत डरते हैं शनि से। तो शनि के साथ जुड़ा हुआ जो नंबर है वो 8 है। किंतु आई फर्मली बिलीव कि यदि कर्म ठीक ठाक है तो किसी भी नंबर से, किसी भी अंक से डरने की बात नहीं है। क्योंकि जहां कहीं भी एस्ट्रोलॉजी की बात आती है, 8 का नंबर जो है वो आपको हमेशा उसी खाने से डराया जाता है कि 8 के खाने से डरिएगा। किंतु इस नंबर के साथ जुड़ी हुई सारी बातों को यदि आप ध्यान से देखेंगे तो हमेशा आपको ये नंबर अपने आप में शुभ ही दिखेगा। यदि हमारे कर्म ठीक है तो कोई भी नंबर, कोई भी अंक कभी लागू नहीं होता। यदि मन में पहले से पता है कि हाँ, ऐसा कुछ कर्म हुआ है, तभी कहीं ना कहीं डर पैदा होता है जीवन में। यदि कर्म जो है उसमें हमने एक माइंडफुलनेस के साथ जीवन जीना शुरू कर दिया, तो फिर डर भी नहीं रहता। डर का मूल कारण ही कहीं ना कहीं हमारे ऐसे कर्म होते हैं, ऐसे हमारे विकार होते हैं, हमारी वृत्तियां होती है, जिनके कारण बार बार हमारा मन हमें ये कहता है कि अगर ये नहीं करेंगे तो ये हो जाएगा। तो इसी कारण से कहीं ना कहीं वो ट्रांजेक्शनल भक्ति जो है वो खुल जाती है। देवी माँ बगलामुखी 8 नंबर के साथ जुड़ी हुई है और अत्यंत शुभ है, क्योंकि 10ओं की 10 महाविद्या अपने आप में देवी माँ है। इन्हें कई नाम से भी पुकारा जाता है, जैसे कि बलगामुखी कहा जाता है, बगला कहा जाता है सिर्फ, या फिर बलगा कहा जाता है सिर्फ। किंतु जो मूल शास्त्र में नाम दिया गया, तंत्र शास्त्र में नाम दिया गया, वो बगलामुखी ही है। तो अपने आप में अत्यंत प्रचंड देवी है, शुभ, अति शुभ देवी है। और इस मान्यता से हम बाहर निकल जाएंगे आज के बाद कि ये शत्रुओं के साथ या फिर उनके नाश के साथ या फिर स्तंभन के साथ जुड़ी हुई है। और एक अनुष्ठान या फिर एक यज्ञ हमने किसी के नाम से किसी के ऊपर करवा लिया तो माँ उनके ऊपर वो प्रहार कर देगी जो हम चाहते हैं, या फिर उनकी हानि हो जाएगी, उनका नुकसान हो जाएगा, या फिर हमारी हानि हो जाएगी किसी के द्वारा। ऐसा कुछ भी नहीं होता। सबसे पहले दिन जब ये तंत्र साधना ऐप लॉन्च हुई थी, उस समय पर स्वामी जी ने एक ही बात कही थी कि बाकी के सारे स्वरूपों को आप अलग अलग तरीके से पुकार सकते हैं, किंतु 10 महाविद्याओं को मात्र देवी माँ के स्वरूप में पुकारा जा सकता है। उन्हें आप गुलाम नहीं बना सकते अपना, उन्हें आप नौकर नहीं समझ सकते। आज की तारीख में मैं जब देखता हूँ सोशल मीडिया के ऊपर इस तरीके से यज्ञ हो रहे देवी माँ बगलामुखी के, और आहुति मानो जैसे मुट्ठी में लेकर माँ को एक खाना ठुसाया जाता है ना, वैसे आहुति डाली जाती है। ऐसे विजुअल्स आते हैं कि मुझे आश्चर्य होता है दुख से भी ज्यादा, कि क्या वास्तव में हम कभी समझ पाएंगे कि देवी माँ जो हमारी माँ है, उन्हें आप इस तरीके से आहुति डाल रहे हो भर भर के, और इतना क्रोध के साथ, इतना उद्दंडता के साथ, जैसे अपने किसी नौकर को बुला रहे हैं आप। यदि ऐसे ही बगलामुखी हवन सिद्ध हो जाते जैसे आज की तारीख में हो रहे हैं, तो आज आधा भारत, या फिर ये कह लें कि आधा विश्व जो है वो सिद्ध हो चुका होता। सभी को देवी माँ का साक्षात्कार हो चुका होता। तो हमें ये तय करने की आवश्यकता है कि क्या हम
अंधश्रद्धा में रहकर या फिर हमारी अपनी इच्छाओं के चलते ऐसे रास्ते पर जाना चाहते हैं जहां पर पैसों की भी बर्बादी है, समय की भी बर्बादी है, शक्ति की भी बर्बादी है, और खास करके भक्ति भाव की बर्बादी है। क्योंकि यहाँ पर कोई भक्ति भाव नहीं होता। मैं जहां पर भी देखता हूँ वहां पर मुझे कहीं पर भी देवी माँ की उपासना में भक्ति भाव नहीं दिख रहा, खास करके ऐसे यज्ञ में जो सिर्फ दिखावे के लिए किए जा रहे हैं आज की तारीख में। वहां पर आप जाकर आएंगे, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि ये क्या हुआ। उससे बेहतर है कि अभी थोड़ा पहले से समझकर अपने जीवन को बेहतर बनाएं। थोड़ा सा माइंडफुलनेस के साथ, थोड़ा सा ज्यादा एक भक्ति भाव के साथ हम सोचे कि हम क्या करना चाहते हैं जीवन में। तो ऑन that note, would like to conclude the session with Q&A. So, Vikram, over to you. Thank you, Brahmacharya ji. So, yes, a couple of questions have come through. One of them being, can we continue chanting Dhyan Shlok after Navratri? One. And a related question, which is, can one do a sadhana on the Dhyan Shlok? ओके, तो पहला प्रश्न का जवाब है कि आप डेफिनेटली ध्यान श्लोक का उच्चारण कर सकते हैं, उसका श्रवण कर सकते हैं, सुन सकते हैं डेली लाइफ में। किंतु तंत्र साधना ऐप के ऊपर ध्यान श्लोक जो है वो ये मात्र 10 दिनों के लिए होगा। एंड देन उसके बाद जब जब अवसर आते रहेंगे, तिथियां आती रहेंगी और विशेष पर्व आते रहेंगे, तब तब ये ध्यान श्लोक जो है वो वहां पर फिर से एक बार सीक्रेट साइन के माध्यम से एक्टिवेट हो जाएंगे। किंतु यदि आपके पास पहले से ग्रंथ हैं और आप उस ग्रंथ से कोई ध्यान श्लोक का श्रवण करना चाहते हैं, यूट्यूब के माध्यम से करना चाहते हैं, या फिर आप पठन करना चाहते हैं, उच्चारण करना चाहते हैं, तो अपने तरीके से कर सकते हैं। पहला जवाब ये। दूसरा, क्या ध्यान श्लोक की साधना हो सकती है? तो देखिए, प्रत्येक श्लोक मंत्र नहीं होते, किंतु प्रत्येक मंत्र श्लोक जरूर होते हैं। तो कई बार ध्यान श्लोक हो सकता है कि मंत्र ना भी हो। जैसे कि अम, भवानी अष्टकम श्लोक है, जरूर है, स्तुति गान है देवी माँ का, लेकिन भवानी अष्टकम की साधना नहीं हो सकती। वैसे ही जैसे महिषासुर मर्दिनी स्तोत्रम है, साधना नहीं हो सकती। किंतु सौंदर्य लहरी, आनंद लहरी, ये अपने आप में स्तोत्र भी है, श्लोक भी है, स्तुति गान भी है, और उनके प्रत्येक श्लोक की साधना भी हो सकती है। जैसे कि श्री सुक्तम, जो 16 ऋचाएं हैं, वो देवी माँ का स्तुति गान है, जो ऋग्वेद से प्राप्त होता है 5वें मंडल से। प्रत्येक श्लोक का, प्रत्येक ऋचाओं का वहां पर मंत्र के स्वरूप में ध्यान हो सकता है, उनकी साधना तक हो सकती है। तो यहाँ पर जो प्रत्येक महाविद्याओं के ध्यान श्लोक दिए गए हैं, वो ध्यान श्लोक का जो एक तात्पर्य है, जो उद्देश्य है, वो आपको देवी माँ के समीप लेकर जाना है। लेकिन यदि देवी माँ की अनुभूति करनी है, उनका साक्षात्कार करना है, यदि उनकी कृपा प्राप्त करनी है, तो कहीं ना कहीं उनके मूल मंत्र की साधना यहाँ पर नितांत आवश्यक बन जाती है। और इसी के लिए एक क्रमबद्ध तरीके से तंत्र साधना ऐप पर आपको उन मंत्रों को दिया जाता है। एक साथ वहां पर सभी देवी माँ के स्वरूपों को ओपन नहीं कर दिया गया। स्वामी जी के स्वर में उनके मंत्र जो है, जागृत मंत्र, उनकी अपनी साधना वहां पर दी गई, और उसी साधना के माध्यम से दीक्षा भी प्रदान की जा रही है उसी ऐप के ऊपर, तंत्र साधना ऐप के ऊपर। किंतु क्रम आराध्या, महायाग क्रमाराध्या, महाभैरव पूजिता, क्रमबद्ध तरीके से आप देवी माँ को एक के बाद एक साधना जो है उनकी कर सकते हैं। ध्यान श्लोक की साधना नहीं हो सकती, आप मूल मंत्र की साधना कर सकते हैं, एंड दैट इज अवेलेबल एवरीवेयर ऑन तंत्र साधना ऐप। तो आप अपनी जर्नी शुरू कीजिए माँ काली की साधना के साथ। यदि उनका ध्यान श्लोक आपको अत्यंत प्रभावित लग रहा है, आपको आकर्षित कर रहा है उनकी ओर, तो उनकी मूल साधना करिए। यदि आप मान लीजिए बगलामुखी माँ की ओर आकर्षित हैं, तो आपको पहले 7 महाविद्याओं की साधना जो है वो अवश्य करनी चाहिए, ताकि आपको माँ बगलामुखी की जो कृपा है वो क्रम से प्राप्त हो। क्योंकि जब पहले 7 क्रम में आप एक गुजर चुके हो उस क्रम से,
उस क्रम का क्या महत्व है वो भी मैंने आई थिंक 2 या 3 दिन पहले या फिर कल परसों डिस्कोर्स के दौरान बताया था कि 10 महाविद्या क्या सूचित करती है। ह्यूमन एवोल्यूशन की बात आती है तब, एक साधक की एवोल्यूशन की बात आती है तब देवी माँ के 10 स्वरूप क्या सूचित करते हैं। तो उस तरीके से जब आप आगे बढ़ेंगे तब आप बगलामुखी माँ को और भी ज्यादा तीव्रता के साथ पुकार पाएंगे और उनकी अधिक प्रसन्नता प्राप्त कर पाएंगे। सो दैट्स माय आंसर। Thank you, Brahmachari ji. And I think the related answer to another question where somebody is asking where can one do Dashmaha Vidya Sadhana after the secret shrine ends? Very much in the Tantra Sadhana app itself. As Brahmachari ji said, sequentially you can perform Ma Kalika Sadhana, then Matara, and so on and so forth. And every Mahavidya has a proper sadhana end to end. Dhyan Slok, as Brahmachari ji very nicely said, helps in evoking that sentiment, that bhav in us to be able to visualize Ma and get connected with her, so that when we actually perform the mantra chanting and the sadhana, our connectedness with Ma is more deeper. So, urge those of you who are asking this question to please go into the Tantra Sadhana app and begin the sadhana in the app sequentially that is there, and you will be pleasantly surprised of the impact. Uh, uh, Next question, Brahmachari ji. Um, how does okay? What is the difference between mantra and shlok? We've been talking about dhyan shlok and mantras from day one. So, question that has come forth, Brahmachari ji. ओके। सो मैं एक उदाहरण के साथ, एक दृष्टांत के साथ ही आपको बताऊंगा ताकि आपको एक क्लियर कट आइडिया आ जाए कि व्हाट इज श्लोक एंड व्हाट इज मंत्र। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ये श्लोक भी हैं और मंत्र भी हैं। किंतु यदि श्री सूक्तम की पहली ऋचा को देखें, ओम हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्णरजतस्रजाम चंद्राम हिरणमयीम लक्ष्मीम जात वेदो मावह, इसमें 7 मंत्र दिए गए हैं। ओम हिरण्यवर्णाम हरिणीम, ये जो पहला शब्द है उससे एक मंत्र बनता है, ओम हिरण्यवर्णाय स्वाहा या फिर नमः। ओम हरिण्यै स्वाहा अथवा नमः। ओम हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्णरजतस्रजाम, सुवर्णसृजये स्वाहा, रजतस्रजये स्वाहा। इस तरीके से इस एक ऋचा से कुल 7 अलग अलग मंत्र की प्राप्ति होती है। उसी तरीके से ललिता सहस्त्र नाम का उदाहरण भी देना चाहूंगा। ललिता सहस्त्र नाम में 182 श्लोक हैं। 182 श्लोकाज आर देयर। ओम श्री माता श्री महाराज्ञी श्रीमत् सिंहासनेश्वरी चिदग्नि कुंड संभूता देव कार्य समुद्यता, ये श्लोक है। मंत्र क्या है इसमें? सबसे पहला जो वर्ड है श्री माता, उससे मंत्र बनता है ओम श्री मात्रे नमः। दूसरा वर्ड श्री महाराज्ञी, ओम श्री महाराज्ञे नमः, ये मंत्र बना। तीसरा वर्ड श्रीमत् सिंहासनेश्वरी, मंत्र बना ओम श्रीमत् सिंहासनेश्वर्यै नमः। चौथा वर्ड चिदग्नि कुंड संभूता, उससे मंत्र बना ओम चिदग्नि कुंड संभूतायै नमः। पांचवा वर्ड देव कार्य समुद्यता, मंत्र बना ओम देव कार्य समुद्यतायै नमः। ये डिस्टेंस है, ये एक अंतर है, डिफरेंस है मंत्र और श्लोक में। मैंने पहले भी कहा, एक प्रश्न पहले जो उत्तर दिया मैंने, कि श्लोक जो है वो मंत्र हो सकते हैं, लेकिन मंत्र प्रत्येक जो है वो श्लोक हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो जो ओम नमः शिवाय मंत्र है वो हमें रुद्रम, जो श्री रुद्रम है नमकम चमकम के साथ, उसके जो श्लोक हैं उसमें से प्राप्त होता है। कौन सा श्लोक है जहां से पंचाक्षरी मंत्र की प्राप्ति हुई? ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। तो इसके बीच में जो एक वर्ड आया नमः शिवाय, वहां से हमें देवी महादेव के पंचाक्षरी मंत्र की प्राप्ति हुई। तो ये श्लोक है और उसमें से मंत्र बना। किंतु यदि आप मानकर चले कि
जो माँ काली का ध्यान श्लोक है, कराल वदनाम घोराम मुक्त केशिम चतुर्भुजाम कालिकाम दक्षिणाम दिव्याम मुंडमाला विभूषिताम। ये श्लोक है, ये मंत्र नहीं है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन श्लोक एंड मंत्र। Thank you so much for that answer, Brahmacharya. A couple of questions have come as to, what could one do after the Gupta Navratri ends? Can they continue? What can one do? I think, Brahmacharya, as we were on the last day, we will be informing about how one can progress on the path of sadhana. What are the next set of things that one can do? So, those of you who have that question, please attend on day 10 in the next couple of days, and we will give you a perfect pathway for what one can do after Gupta Navratri. Just like this particular event, we will be having multiple workshops and also taking you step by step in each of the sadhanas. So Ma Kali Sadhana workshop will be upcoming. Information about that and other aspects will be covered in the last day during the session. Please do attend, and we will also put it up in the groups and message you as well. Brahmacharya ji, the one more question that has come is, can one perform multiple sadhanas together? Let's say somebody is performing in sadhana app, can they perform Mahavidya sadhana, or somebody is performing a physical sadhana? Can they continue to perform another sadhana on the Tantra sadhana app? देखिए, कुछ मील्स जो है ना, कुछ भोजन, कुछ आइटम्स, कुछ पकवान, वो 2 या 3 पकवान एक साथ जा सकते हैं। जैसे कि नूडल्स मंचूरियन हो गया, वो साथ में जा सकता है। किंतु यदि आप ये सोचकर चले कि मैं खिचड़ी और सिज़लर या फिर खिचड़ी और मंचूरियन साथ में खाऊँगा, तो फिर उसका कोई मेल नहीं बैठता, कोई समन्वय नहीं बैठता। तो वैसे ही कुछ साधना ऐसी हैं, जैसे कि नवदुर्गा साधना हो गई, और देवी माँ की जो 10 महाविद्या की साधना है तंत्र साधना ऐप पर, वो एक साथ हम कर सकते हैं। उच्छिष्ट गणपति साधना के साथ दूसरी महाविद्याओं की साधना हम एक साथ कर सकते हैं। अम, श्री सूक्तम साधना के साथ हम महाविद्या की साधना या फिर कोई भी तांत्रिक अथवा वैदिक साधना जो है वो कर सकते हैं। किंतु स्वामी जी ने द एंशिएंट साइंस ऑफ मंत्रास में क्लियरली ये बात लिखी है कि एक एनर्जी के ऊपर हम दूसरी एनर्जी को ओवरलैप नहीं करते। एक समय पर एक साधना के ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए। फोकस हमारा एक ऊर्जा को जागृत करने के ऊपर होना चाहिए, एक स्वरूप को जागृत करने के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि आप पूरा दिन उसी भाव में रहते हैं ना। यहाँ पर हमें कोई रेस नहीं लगी है कि ये भी खा लेना है, वो भी खा लेना है, ये भी प्राप्त कर लेना है, यहाँ पर भी पहुंच जाना है, ये गोल्स मुझे खत्म कर देना है, ये मुझे जो है इंटेंशन मेरा, ये पर्टिकुलर ध्येय उसे भी सिद्ध कर लेना है। ये नहीं करना है हमें। यदि देवी माँ को जागृत कर रहे हैं, तो पूरा दिन उसी भाव में रहिए। फिर अगर देवी माँ के साथ-साथ आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल तंत्र साधना पर आप एक साधना कर रहे हैं और दूसरी साधना जो है वो पैरेलल किसी और माध्यम से कर रहे हैं, तो आप किसी भी साधना के ऊपर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएँगे। ना तो अपनी महाविद्या की साधना के ऊपर, ना तो किसी और साधना के ऊपर। तो बेहतर है कि पहले एक साधना को अच्छे से करिए, ढंग से करिए। उसके बाद हम अलग-अलग, अलग-अलग, अलग साधनाओं के ऊपर फ़ोकस कर सकते हैं, एक के बाद एक कर सकते हैं। सो दैट्स माय आंसर। Thank you, Brahmacharya ji. I think people loved the analogy of Manchurian and noodles. Very well said. So, just a couple of more questions, Brahmacharya ji. Uh, I think again this goes back to some of the questions that came in again, but then I'll just combine it two, three, and ask you, Swamiji, ask you, Brahmacharya ji, which is, if one misses a day sadhana, can they continue? Can they eat non-veg after, let's say, Gupta Navratri ends? And can one should what is the best direction that one should consider while doing sadhana? Three questions have combined, Brahmacharya ji. रामकृष्ण परमहंस एक बार जब मछली खा रहे थे, मत्स्य का सेवन कर रहे थे, उस समय पर उनके किसी शिष्य ने पूछा कि अरे आप तो जीव हत्या कर रहे हैं। ये तो आप एक जीव का भोग लगा रहे हैं, उसे ग्रहण कर रहे हैं, उसे मार कर खा रहे हैं। तो क्या इससे देवी माँ प्रसन्न होती है?
तो रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा कि यदि आप तामसिक भोजन यानी कि नॉनवेज जो है वो भी अगर सात्विक भाव के साथ ग्रहण कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो भोजन जो है वो वेज ही बन जाता है, अर्थात सात्विक ही बन जाता है। किंतु यदि आप सात्विक भोजन यानी कि वेजिटेरियन फूड एक तामसिक भाव के साथ क्रोध, अहंकार, लोभ, मोह, किसी के साथ फोन पर बात करते करते उनको आप डांट रहे हैं, उनको आप गालियां दे रहे हैं, और साथ में आप अपना भोजन जो है वो कर रहे हैं, वो चाहे आप खिचड़ी ही क्यों ना खा रहे हो, आप मांस ही खा रहे हो, आप मीट ही खा रहे हो, तो आपका भोजन यदि सात्विक है किंतु भाव तामसिक है तो आपके पेट में जो जा रहा है वो नॉनवेज ही है। इतना आप मानकर चलिएगा। तो नॉनवेज खाना है, ऑनियन गार्लिक, ये सारी चीजों से थोड़ा ऊपर उठ जाइए। हम यहाँ पर भाव की बात कर रहे हैं। यदि आपका भाव सच्चा है तो आप चाहे कुछ भी खा रहे हो, दैट डजंट रियली मैटर। यदि आपके अंतर में शुद्धता है, पवित्रता है, हो सकता है कई बार देखिए जो तटीय प्रदेश है, कोलकाता हो गया, जैसे हमारे जो दक्षिण भारतीय प्रदेश हैं वहां पर नॉनवेज खाया जाता है। वहाँ के जो पंडित हैं शायद वो भी बहुत नॉनवेज जो है उसका सेवन करते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ की जरूरत है शायद। उन प्रदेशों में पहले कुछ गरम खाने के लिए और शरीर को गर्म रखने के लिए ऐसा ही कुछ खाना पड़ता था। उनके पास ऑप्शन नहीं था, विकल्प नहीं था। किंतु आप मात्र अपने प्लेजर के लिए खा रहे हैं, अपनी अपने टेस्ट बर्ड्स को खुश करने के लिए, उसे सेटिस्फाई करने के लिए आप अलग अलग चीजों को खा रहे हैं, अलग अलग पशुओं को मारकर या फिर जीवों को मारकर उनको उनका सेवन हो रहा है। देन इट इज रॉन्ग। यदि आपकी जरूरत है, यदि आपको हेल्थ एक्सपर्ट्स के द्वारा या फिर डॉक्टर्स के द्वारा कहा गया है कि यदि आप ये नहीं खाएंगे तो आपकी बॉडी में ये जो कमी है या फिर ये जो बीमारी है वो ठीक नहीं हो पाएगी, इट इज योर नेसेसिटी टू ईट दैट पर्टिकुलर नॉन वेज फूड। किंतु यदि आप सिर्फ अपने जीभ के स्वाद के लिए खा रहे हैं, देन इट इज रॉन्ग। सो दैट्स द आंसर। विक्रम, आपका थर्ड क्वेश्चन क्या था? थर्ड क्वेश्चन था, एक सेकेंड, सॉरी प्रभुचर्य जी, टोटली नो forgot. वरीज, नो वरीज। Again, it'll come to me, Brahmacharya. So there's one more question that's come, which is, if one feels more connected to visualization than mantra meditation, can they choose one? And other question is, how can one deepen in the mantra chanting itself? तो ध्यान श्लोक में अगर किसी का मन लग रहा है मेडिटेशन में, तो क्या आप मंत्र या फिर साधना से ज्यादा उसमें ध्यान लगा सकते हैं? देखिए अल्टीमेटली हमारा जो मोटिव है, जो गोल है, वो वही है कि देवी माँ की प्राप्ति हो। आप जिस भी मार्ग से अपने आप को देवी माँ के समीप पाते हैं, उनके नजदीक पाते हैं, उनके स्वरूप के साथ एकाकार हो पाते हैं, यदि आपके आंखों में आंसू आ रहे हैं, चाहे वो ध्यान करने मात्र से हो, चाहे मंत्र का उच्चारण करने मात्र से हो, चाहे योग करने के मात्र से हो, किसी भी माध्यम से हो, उस माध्यम का चुनाव कर लीजिए। उस माध्यम को कूटस्थ होकर पकड़ लीजिए, छोड़ना नहीं है, लगे रहिए उस मार्ग के ऊपर। एक ही थंब रूल को याद रखिए, जिस मार्ग से आपकी आंखों में ईश्वर के प्रति आंसू आए, जिस मार्ग पर चलते हुए आप निस्वार्थ भाव के साथ धीरे 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 मात्र अपने लिए नहीं किंतु समाज का भी हित सोचना शुरू करें, उस मार्ग पर आप आगे बढ़ जाइए। तो if you want to walk on the path of mantra meditation, then ancient science of mantras, tantra sadhana app are for you. If you want to walk the path of visualization, then a million thoughts kundalini black lotus app is for you. क्योंकि ब्लैक लोटस ऐप के ऊपर भी आपको अलग अलग विजुअलाइजेशन जो है वो वहां पर दिए गए हैं। कुछ स्वामी जी के स्वर में है, कुछ हमारे अलग अलग एक्सपर्ट्स के द्वारा है। तो वहां पर भी आप उस मार्ग पर चलते हुए भी अपने विजुअलाइजेशन की यात्रा को आगे बढ़ा सकते हैं। प्लस OS.me जो स्वामी जी की वेबसाइट है, OS.me के ऊपर देवी भागवतम का कोर्स है, उसमें भी देवी माँ का एक बहुत ही सुंदर विजुअलाइजेशन कराया गया है, वो भी आप कर सकते हैं। सो
That's it. I forgot the second question again, Vikram. Yeah, I think you answered everything, Brahmachariji. Thank you. Okay. So some people are asking about the surprise. When is it going to be announced? Yes. So sorry for the delay on that. We will announce it on the 10th day, day after tomorrow, when Priyanka Anand, CEO of VSF, will also be with us. So we will announce it that day, and hopefully it'll be a very pleasant surprise. We will let your feedback tell us if that is what is so. The same day, we will also discuss about what next after, how to do, what to do as well. And of course, some of you are asking about books. How do you go about deeper into the esoteric meanings of Mahavidyas? How to do Mahakali Sadhana in depth? What else can be done, etc. So, if you are not already on in Tantra Circle groups, please join the Tantra Circle groups. That's where the link is there in the video. You can. That's where we'll be connected. It is in short, the a close community of tantra seekers, where we will be discussing more about esoteric aspects of tantra. We'll be having workshop, inviting experts. Brahmachariji will also be conducting more sessions for Tantra Circle members. With special videos will be given, and of course, information on books and so on also will be shared. The whole idea is to help aid each other in walking the path of Tantra authentically. And of course, those of you who are using Tantra Sadhana app, please do continue with the rituals and the sadhana there. And every step will be unveiled automatically and guided to you by Swamiji in the app. I think, Brahmachariji, we have taken most of the questions. So we'll note down others if there are any and cover them tomorrow. Thank you so much for your time, Brahmachariji. Thank you so much, everybody, for attending today's session. We look forward to meeting you tomorrow. Again, same time, 8 o'clock tomorrow evening. Till then, Jai Shri Hari. Good evening, good night. Thank you Thank you. so much. Jai Shri Ram.